जी students, assalamu alaikum. As you know, we have discussed chapter number 10, the jewel of the world, in detail. So now is the time to have the answers of the important short questions. So question number 1 is, give an account of the early career of Abdur Rahman I, how his dramatic escape and his adventures in Africa. On the arrival of enemies, अब्दुर रहमान swam across the river to save his life. दुश्मनों के आने पे अब्दुर रहमान जो है वो अपनी जान बचा के भागा और वो दरिया में कूद गया और दरिया में तैर के नॉर्थ अफ्रीका की तरफ चला गया. He could hardly escape assassination. कत्ल से वो बड़ी मुश्किल बचा था. 5 years later he reached Sutton. 5 साल बाद वो स्योटा पहुंचा. His maternal uncles lived in North Africa. They offered him refuge. वहां वो अपने अंकल्स के पास उन्होंने पनाह हासिल की. How did Abdur Rahman deal with the governor appointed by the Abbasid Caliph to contest his rule? अब्बासियों का जो खलीफा था उसने एक गवर्नर अपॉइंट किया था, तो उसके साथ अब्दुर रहमान ने क्या सलूक किया? अब्दुर रहमान killed the governor, cut his head off and sent it to the Abbasid Caliph as a gift. What did the Abbasid Caliph say on receiving the head of the governor? अब्बासियों के खलीफा ने गवर्नर का सर मिलने पे क्या कहा? उसने कहा, thanks to be Allah for having placed the sea between us and such a fool. तो अब्बासियों के खलीफा ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमारे और इस तरह के दुश्मन के दरमियान एक समंदर रख छोड़ा है, नहीं तो अब्दुर रहमान जो है वो शायद हम सारे अब्बासियों का सत्यानाश कर देता. इसके बाद है, व्हाट डिड अब्दुर रहमान डू टू मेक ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग, टू मेक हिमसेल्फ स्ट्रॉन्ग एंड टू ब्यूटिफाई द कैपिटल. अब्दुर रहमान ने अपने मुल्क को ताकतवर करने के लिए और दारुल खिलाफा को खूबसूरत बनाने के लिए क्या कुछ किया? He developed a highly trained army. He supplied pure water to the capital. He built a wall round his capital. उसने अपने दारुल खिलाफा के गिर्द एक दीवार भी तामीर की. He also built a palace and a garden there. Give an account of the all-round progress made by the Arabs under Abdur Rahman III. अब्दुर रहमान III की हुक्मरानी में अरबों ने किस किस्म की तरक्की की? इन द रियन ऑफ अब्दुर रहमान III, अब्दुर रहमान III के दौरे हुकूमत में, ये लफ्ज़ बेटे रियन है, इसको बाज बच्चे रिजन करके पढ़ते हैं जो कि बिल्कुल रॉन्ग है. इन द रियन ऑफ अब्दुर रहमान III, कॉर्डोवा became the most cultured city of Europe. Leather industry made a flying start. Wool and silk were woven there. Glassware, brasswork and pottery were introduced there. Agriculture and industry made a lot of progress. What did Al-Hakam do to promote learning and scholarship in his kingdom? Al-Hakam ने अपनी रियासत में इल्म दानिश के अजाफे के लिए क्या कुछ किया? He set up 27 free schools in the capital. उसने फ्री स्कूल कायम किए दारुल खिलाफा में. He enlarged the mosque which housed the University of Cordova. उसने यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्डोवा को जो है वो तरतीब दिया, उसका इंतज़ाम किया. मस्जिद को उसने बड़ा कर दिया और वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्डोवा को सेटअप किया. He invited professors from the east to it and he gathered 4 lakh books in the library of Cordova. Who overthrew Umayyad? Or when and by whom was Umayyad family overthrown? बनु उमैया खानदान की हुकूमत का तख्ता किसने उल्टा? In 750 the Abbasid family overthrew Umayyad family in Damascus. 750 में दमिश्क में अब्बासी खानदान ने उमैया खानदान का तख्ता उलट दिया. How did Abbasids behave with Umayyad family?
अब्बासियों ने उमवियों के साथ कैसा सलूक किया. The Abbasids killed every member of the Umayyad family whom they could catch. Where did Abdur Rahman escape and how did he live there? अब्दुर रहमान ने फरार कहाँ हासिल की और वो कैसे वहाँ रहा? Abdur Rahman escaped to Spain. He became the ruler of Spain and kept his family in power there. How did Abdur Rahman escape from the soldiers of Abbasids? अब्बासियों के सिपाहियों से अब्दुर रहमान कैसे फरार हुआ? When Abbasids came to capture, जब अब्बासी गिरफ्तार करने के लिए आए, he jumped into the river. उसने दरिया में छलांग लगा दी. Kept on swimming and gained the other shore. वो तैरता रहा और आखिरकार दूसरे साहल तक पहुंच गया. Where did Abdur Rahman go from Ceuta? Who were staying in the south of Spain when Abdur Rahman reached there from Ceuta? Who accepted Abdur Rahman as their leader for the first time? ये तीनों सवालों का बेटे एक ही जवाब होगा. Some Syrian troops from Damascus were encamped in the south of Spain. शाम की कुछ फौजें जो हैं वो स्पेन के जनूबी हिस्से में कैंप लगाकर बैठी हुई थी जो कि दमिश्क से आई थी. Abdur Rahman made his way to them and they accepted him as their leader. What did Abdur Rahman do with the governor of Spain appointed by the Abbasids Caliph? What gift did Abdur Rahman send to the Abbasid Caliph? 2 years later, Abdur Rahman killed the Abbasid governor and sent his head as a gift to the Abbasid Caliph. It was preserved in salt and camphor and wrapped in black flag and in the letter of appointment. 2 साल बाद अब्दुर रहमान ने अब्बासी गवर्नर को कत्ल कर दिया और उसका सर तोहफे के तौर पर अब्बासी खलीफा को भेज दिया. इसको नमक और कफूर लगा के एक काले झंडे में बंद किया गया था और साथ में अपॉइंटमेंट का लेटर भी दिया गया था. What sort of army did Abdur Rahman develop? How did Abdur Rahman keep his army in his favor? Abdur Rahman developed a well-disciplined and highly trained army, 40,000 or more Berbers. He gave generous pay to his army to keep them in his favor. वो अपनी आर्मी को बड़ी जबरदस्त तनख्वाह देता था. What did Abdur Rahman do in 773? What did Abdur Rahman decide about the sermon on Fridays? ये सवाल बेटे ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है. He ended the Friday sermon. उसने जुमे का खुतबा ही खत्म कर दिया था. Which was read in the name of the Abbasid Caliph, जो अब्बासियों के खलीफा के नाम पे पढ़ाया जाता था. But he did not assume the title himself. In which field did Abdur Rahman take interest after he had proved himself a great man in the art of war? मैदान जंग में कामयाबी हासिल करने के बाद अब्दुर रहमान ने किन मैदानों में दिलचस्पी ली? After proving himself to be a great warrior, अजीम जंगजू साबित होने के बाद अब्दुर रहमान turned to the arts of peace. उसने अमन की कोशिश शुरू कर दी. He made his cities beautiful, built a channel for the supply of pure water to the capital, built a wall around it, and ordered the buildings of a palace and a garden. So, वो उसने अपने शहरों को खूबसूरत बनाया और एक रास्ता बनाया जहाँ से साफ पानी आए. दारुल खिलाफा के लिए उसने दीवार बनाई, बाग बनाया, महल बनाया और किस किस्म के पौधे उसने लगाए. To his villa, अपने महल के बाहर, he brought water and introduced some imported plants. Imported में बेटे वो N लगा हुआ है, आप लोग काइंडली M लगा लीजिएगा. Some imported plants such as peaches and pomegranate, अनार भी वहाँ लगाए. He uttered some of his own tender verses to the first lonely palm tree imported from Syria. और सीरिया से उसने पाम ट्री भी इंपोर्ट किया.
तो बताने का मकसद ये बेटे कि किस तरह जो है वो कल्चर उसने बेहतर बनाया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड अब्दुल रहमान फाउंड 2 years बिफोर हिज डेथ? मौत से 2 साल पहले अब्दुल रहमान को क्या मिला? विच मॉस्क डिड अब्दुल रहमान फाउंड इन 788? Abdur Rahman founded the Great Mosque of Cordova in 788, 2 years before his death. The mosque was a rival to the two mosques of Islam in Jerusalem and Makkah. ये मस्जिद जेरूसलम और मक्का में बनाई गई मस्जिदों के तकरीबन बराबर थी. The mosque was completed and enlarged by years. इस मस्जिद को फिर जो है वो उसके जानशीनों ने मुकम्मल किया और बड़ा किया. आगे बेटे ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, लेकिन मैंने ये सिर्फ मरूजी और ऑब्जेक्टिव के लिए जो है ये शामिल किए हैं. इनकी आपने मेरा बेटा रीडिंग कर लें, आप लोग साथ साथ स्टडी कर लें इसे. ये सवालात जो हैं ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं. बाकी जो है वो पहले जो 6 सवाल थे वो टेक्स्ट बुक के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं. इस तरह ये कुछ सवालात हैं जिन्हें आपने सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए एक दफ़ा पढ़ लेना है. इनकी सिर्फ जनरल रीडिंग की ज़रूरत है ताकि अगर इनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है तो आप उसे अटेम्प्ट कर सकें ईजीली. तो यहाँ कुछ जैसे लिखा हुआ है कि हाउ डिड अब्दुल रहमान III स्ट्रेंथन हिज स्टेट, उसने अपनी रियासत को कैसे बढ़ाया. और हाउ डिड कॉर्डोवा विन इंटरनेशनल फेम, करतबा का जो शहर है उसे बैनुल अक़वामी हैसियत कैसे हासिल हुई. तो आपसे ये लेक्चर में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है फिर भी. देखिए, विद इट्स 1,13,000 होम्स, 21 आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट्स, 70 लाइब्रेरीज. ये इंपॉर्टेंस है इसकी बेटे कि इसके अंदर 70 लाइब्रेरियां थी. अच्छा, ये बात जो है कि इस चैप्टर का नाम द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड क्यों रखा गया है. व्हाट डिड अ सैक्सन नन से अबाउट मुस्लिम कैपिटल कॉर्डोवा? एक राहबा ने कॉर्डोवा के बारे में क्या कहा था? When the fame of Cordova penetrated to the distant Germany, a Saxon nun there styles it the world. उसने जो है वो इसको कहा कि ये jewel of the world है, इस दुनिया में इसको jewel of the, so she called it the jewel of the world. इसमें आप एक लाइन का इजाफा कर सकते हैं. She called it the jewel of the world. What was the industrial condition of Muslim Spain? ये बेटे मुस्लिम स्पेन की सनत व तरक्की के बारे में बताया गया है. इस तरह नीचे रेशम के जो कीड़े हैं, रेशम कैसे पैदा किया गया है, ये उसके बारे में बताया गया है. और ये एक फिर भी ऑब्जेक्टिव के लिए एक सवाल फिर से इंपॉर्टेंट आ गया. वाई वॉज जनरल लाइफ सो फेमस? जनरल लाइफ जो है वो इतना क्यों मशहूर है? ये असल में एक बाग का नाम था. द गार्डन वॉज फेमस बिकॉज ऑफ इट्स वाइड शेड्स, फॉलिंग वाटर्स एंड सॉफ्ट ब्रीज. यहाँ आबशारें बनाई गई थीं, यहाँ खूबसूरत ठंडी हवा चलती थी. तो इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ एन एम्पीथेटर एंड वॉज इरीगेटेड बाई स्ट्रीम्स विच फॉर्म्ड मैनी फॉल्स. हु वॉज अल हकम एंड वट काइंड ऑफ मैन वॉज अल हकम? अल हकम कौन था? इसके बारे में बेटे हम पहले पीछे भी पढ़ चुके हैं. वेयर वॉज सिचुएटेड द यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्डोवा? यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्डोवा कहाँ है? तो इट वॉज स्टार्टेड इन द मेन मॉस्क ऑफ कॉर्डोवा. बेटे इसे मस्जिद कर्तबा में शुरू किया गया था. इट बिकेम वन ऑफ द फेमस इंस्टीट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड. इन फेम इट लेड बोथ अल अजहर एट कैरो, अल अजहर यूनिवर्सिटी एंड द निजामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बगदाद. तो यहां पूरी दुनिया से मुसलमान आए. व्हाट डिड अल हकम डू टू प्रमोट द यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्डोवा? यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्डोवा को प्रमोट करने के लिए अल हकम ने क्या किया? अल हकम एनलार्ज्ड द मॉस्क्स विच हाउस द यूनिवर्सिटी. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसे भी आप स्टडी कर लीजिएगा. तो ये भी दोबारा उन्हीं चीज़ों की एक कड़ी है, उन्हीं चीज़ों की एक चेन है जो ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है. इसकी सिर्फ आपने रीडिंग कर लेनी है ताकि ये आपके माइंड में रहे. सो थैंक यू. आज के लिए इतना ही काफ़ी.